अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चंद दिनों पहले लाहौर शेराकोट नाके पर तैनात SHO सैफुल्लाह खान नियाजी का कत्ल हुआ। कत्ल करने वाला कोई दुश्मन नहीं, उसका अपना कार खास रखा हुआ बंदा था, जिसकी उसके प्राइवेट क्वार्टर के नीचे एक ट्रैक्टरों की मैकेनिक की वर्कशॉप थी, जहां पे वो ट्रैक्टरों के इंजन वगैरह की मैकेनिक करता था। उसने उसे क्यों कत्ल किया, क्या ऐसी वजह बनी कि उसका अपना ही कार खास उसके अपने ही पिस्टल से उसे कत्ल कर देता है। पहले ये एक छोटी सी वीडियो देखें। ਤੰਗ ਆਏ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ? ਉਹ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕੀਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦੀ ਤੋੜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਮਾਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ CCP ਲਾਹੌਰ ਔਰ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਥਿਆਰ ਮੋਹਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਨਾ। ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੁਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, तो फिर नहीं जी, नहीं। बेटे ये जो अदील है उसकी बेटी है जी। इसकी बेटी का क्या नाम है? सीरत फातिमा। बेटा आपका क्या नाम है? बेटे आपके पापा कहाँ पे हैं? पापा कहाँ पे है? अच्छा बेटे, ये कितने साल की बच्ची है? 2 साल की। स्कूल जाती है? नहीं। अदील की बेटी अभी स्कूल नहीं जाती? नहीं। बेटे अब दूसरा जो उसका माशाल्लाह बेटा या बेटी दुनिया पे आने लगी है, तो इनकी कफालत कौन करेगा? अल्लाह वारिस साहब उनकी हिफाजत अल्लाह ही करेगा कि वो बस घर आ। जी, आपने ये वीडियो में उसके वालिद का बयान सुना, उसके अपने बयान सुने कि उसने क्यों कत्ल किया। ये जो अदील नामी नौजवान लड़का है, इसको सैफुल्लाह खान नियाजी ने अपने एक प्राइवेट क्वार्टर में कार खास के तौर पे रखा था। इसकी नीचे वर्कशॉप थी, शॉप थी, और ये सैफुल्लाह खान नियाजी के साथ अटैच था। जब कोई भी ऐसे आला ऑफिसर के साथ अटैच होता है शख्स, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि ये वो शख्स होता है जो जिसको हम पंजाबी में वचोला कहते हैं। हर SHO ने अपना एक खानशामे के तौर पे या किसी न किसी सूरत में एक वचोला रखा होता है प्राइवेट, क्योंकि जो अपने इनके सरकारी मुलाजम होते हैं उन पे इनको इत्माद नहीं होता। अब कत्ल करने की असल वजह ये 2 गालियाँ नहीं बताई जाती, असल हकायक, असल वजूहात कुछ और हैं। सैफुल्लाह खान नियाजी के इस प्राइवेट रूम पे चंद दिनों पहले लेस्को एहलकारों ने छापा मारा। लेस्को एहलकारों के साथ इसका काफ़ी झगड़ा हुआ और फिर इसने एक टेम्परेरी सा मीटर लगवाया। अब ये जो SHO सैफुल्लाह खान नियाजी है, ये जब भी अपने प्राइवेट रूम में आता, यहाँ पे आके गालियाँ निकालना शुरू कर देता, जो कि इसके वहाँ पे रहने वाले लोगों के बकौल है कि सैफुल्लाह खान नियाजी इतना बदतमीज़ था कि जब भी अपने इस रूम में आता तो गाली निकाल कर ही कहता कि मेरी गाड़ी के ऊपर कपड़ा डालो और मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए ये जो भी इसने चीज़ मंगवानी है पहले इसने गाली निकालनी है, और ये कहता कि ये मेरा एक डायलॉग है गालियाँ निकालना। सैफुल्लाह खान नियाजी डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई हुई थी और हर दुकानदार को बिजली सप्लाई करता था और जिसके एवज 500 रुपया चार्ज करता था। ये जो 500 रुपया महाना था, ये अदील नामी जो जवान इसने रखा हुआ था साथ अपने, ये इकट्ठा करता था।
उस दिन हुआ कुछ यूं कि इसने 4500 रुपया मार्केट से इकट्ठा किया। उसमें से 500 रुपया अदील ने खुद अपनी जेब खर्च के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और 4000 रुपया सैफुल्लाह खान न्याजी को दे दिया। अब सैफुल्लाह खान न्याजी ने उस 500 रुपये की खातर इसके घर कॉल की, कॉल जो कि इसने वालिद ने सुनी और वालिद ने इसको कहा कि मैं अदील का वालिद बोल रहा हूँ, आप ज़रा तमीज़ से बात करें। इसने फ़ौरन गालियाँ निकाली। जब उसने मना किया कि आप गालियाँ ना निकालें, अदील आएगा, आपसे मिल लेगा, आपसे बात कर लेगा, लेकिन सैफुल्लाह खान न्याजी का वही डायलॉग, वही रवैया कि उसके बाप को भी बेटी की, बहन की गालियाँ निकाली। अदील जब घर आता है तो उसका वालिद उसको बताता है कि ऐसे सैफुल्लाह खान न्याजी SHO साहब की कॉल आई थी, वो ऐसे ऐसे गालियाँ निकाल रहा था कि आपने उसका 500 रुपया इस्तेमाल किया है। अदील को इस बात का बहुत रंज होता है। वो फ़ौरन इसके प्राइवेट रूम में जाता है। सैफुल्लाह खान न्याजी नीचे सीढ़ियों में खड़ा होता है। अदील इससे बात करता है कि आपने सर मेरे वालिद को गालियाँ क्यों निकाली, मेरी बहन को गाली क्यों दी। यहीं से इनका तकरार होता है जो कि एक झगड़े की सूरत इख्तियार करता है। अदील फ़ौरन इसके रूम में जाता है, वहाँ से इसी का सरकारी पिस्टल उठाता है, नीचे आता है जहाँ पे SHO साहब को पता भी नहीं होता कि इसके साथ क्या होने वाला है। फ़ौरन आके 4-5 फायर करता है और मौके पर ही SHO सैफुल्लाह खान न्याजी साहब कत्ल हो जाते हैं। 15 पे कॉल होती है। डॉल्फिन वाले एहलकार फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। इस शख्स को जिसने कत्ल किया अदील को गिरफ़्तार करते हैं, इससे पूछताछ करते हैं। मौके पे एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जाती है। उस वीडियो में ये अदील ये बताता है कि ये मुझे गालियाँ निकालता था और आज इसने मेरे वालिद को गाली निकाली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत रंज हुआ और मैंने इसका कत्ल कर दिया। जब उससे पूछा गया कि आप भागे क्यों नहीं कत्ल करके, आप मौके से फरार क्यों नहीं हुए दूसरे मुल्ज़मों की तरह, तो अदील का कहना ये था कि अगर मैं यहाँ से भागता तो मेरी फैमिली को भागना पड़ता, अगर मैं यहाँ से फरार होता तो मेरी फैमिली दर बदर की ठोकरें खाती, तो इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं खुद गिरफ़्तारी दे दूँ और मुझे इस चीज़ पे, इस कत्ल पे कोई रंज नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये कत्ल किया है। उसकी फैमिली का भी यही कहना था कि हमें गालियाँ निकालता था, मेरे वालिद को गाली निकाली थी, उसका एक बच्चा है और एक बच्चा पैदा होने वाला है। अभी पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। अब तफ्तीश में एंड यही होगा कि उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। सैफुल्लाह खान न्याजी का बेटा इसके लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा है कि इस शख्स को वही सज़ा मिलनी चाहिए जैसा इसने मेरे वालिद के साथ किया। रेपुटेशन की बात की जाए, बिहेवियर की बात की जाए, तो सैफुल्लाह खान न्याजी लाहौर के जिस भी थाने में तैनात रहे हैं एक मतनाज़ा शख्स रहे हैं। इसीलिए इसको इस नाके पे तैनात किया गया था कि नाके के ऊपर जो एहलकार साथ खड़े होते हैं उन्होंने चेकिंग करनी होती है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा मसला हो, फिर SHO के पास उसको ले जाया जाता है। यहाँ पे वो ज़्यादा थानों वाली मारदाड़ नहीं होती, लिहाजा इसका रवैया यही था। और ये तो एक थाने का या एक पुलिस की ऑफिसरी थी, लेकिन जो बिजली चोरी करके आगे सप्लाई की जाती थी, जो कि टेम्परेरी मीटर लगाए थे, जो 500 रुपया फी शॉप से चार्ज किया जाता था, ये आया कि एक SHO की शयान शान बात है। फिर गालियाँ निकालना ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसने अदील ने गलत किया, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिर भी गालियाँ देने पे किसी भी इंसान की जान लेने का आपको हक नहीं है। लेकिन हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं, फ़ौरन कोई भी बात हो हम अपने दिल पे ले जाते हैं। इसीलिए बात करने वाले को भी पहले सोचना चाहिए, गाली देने वाले को पहले सोचना चाहिए कि आया कि इस मेरी गाली से उसके दिल पे कितनी खराश आएगी, और गाली सुनने वाले को भी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी चाहिए।
हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए। बर्दाश्त इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप सिर्फ सही बात को बर्दाश्त करें। बर्दाश्त गलत बात को बर्दाश्त करने का नाम है। हौसला पैदा करें अपने अंदर। अगर किसी वक्त कुछ हो भी जाए थोड़ा बहुत, तो उसको एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते उसको बर्दाश्त किया करें। एक बर्दाश्त करने से आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चे सब किसी न किसी रसवाई से बच सकते हैं।